তো সেইকাৰণে যেতিয়া আমি ঈশ্বৰক একেবাৰে শেষ সময়ত আমি কি কৰোঁ, আমি ঈশ্বৰক ইনভলভ কৰাওঁ। আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল সেইটোৱে, আমি ঈশ্বৰক একেবাৰে শেষত আনো। কিন্তু ইয়াতে বাইবেলে কৈছে গড ইজ আৱাৰ ৰেফিউজ এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ, এ ভেৰি প্ৰেজেণ্ট হেল্প ইন ট্ৰাবল। সমস্যাৰ সময়ত উপস্থিত থকা ঈশ্বৰ তেওঁ হয়। সেইকাৰণে মনুষ্য জাতি যেতিয়াই সমস্যা হয় তেতিয়াই তেওঁ উপস্থিত থাকে আমাৰ লগত। কিন্তু আমি তেওঁক আশা নকৰোঁ, আমি তেওঁক নিবিচাৰোঁ, আমি তেওঁক প্ৰাৰ্থনা নকৰোঁ, আমি তেওঁৰ পৰা আমি আশা নকৰোঁ, আমি চব নিজৰ সকলো কৰি লওঁ। और फाइनली जब लास्ट में जाके सब कुछ फेलियर हो जाता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं। हाँ, लेकिन गॉड इज फेथफुल। बाइबल सेज ही इज फेथफुल एंड ही इज देयर ऑलवेज टू हेल्प अस, टू ऑलवेज देयर टू लिफ्ट अस फ्रॉम आवर प्रॉब्लम, आवर सिचुएशन। He is faithful in his promises. God is a God who keeps his promises. परमेश्वर जो ऐसा परमेश्वर है जो अपना प्रॉमिस को पूरा करता है। परमेश्वर अगर अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकता है तो अभी हम ये प्रार्थना यीशु का नाम से मांगते हैं, आमेन। God, another name of God is Amen. Revelation chapter 3 verse 14. His name is Amen. Amen means हिद्ध, completion. उसका बाद और कुछ नहीं, কমপ্লিশন, আমেন। আমেন বাইবেলত লিখা আছে। গতিকে আমেন তেওঁৰ নামটো হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন যদি তেওঁ সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয়, তেওঁ নিজৰ প্ৰতিজ্ঞাত তেওঁ ঠিক নাথাকে, তেওঁ কোৱাটো যদি আজি কোৱাটো তেওঁ যদি পূৰা নকৰে, তেওঁ যদি বিশ্বাসযোগ্য নহয়, ঈশ্বৰে যদি মানুহৰ নিচিনা আজি এটা কথা ক'ব, কালি তাক সলনি কৰিব, পৰহি সলনি কৰিব, এনেকুৱা যদি হয়, তেওঁক আমেন বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমেন যিটো কয়, আমেন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সিদ্ধ হ'ল, কমপ্লিশন, আৰু তাৰ পিছত একো নাই। এই প্ৰাৰ্থনা আমি প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামেৰে খুজিলোঁ, আমেন, সিদ্ধ হ'ল আৰু একো নাই, তাৰ পিছত আৰু আমাৰ একো কৰিব লগা নাথাকে। এই প্ৰাৰ্থনাটো ঈশ্বৰক সোধাই দিলোঁ, এতিয়া ঈশ্বৰে তাক पूरा करिब। परमेश्वर इसको पूरा करेगा, इसको पूरा कर लिया, आमीन का मतलब पूरा कर लिया। अभी हम उसको रिजल्ट देखेंगे, उसका जो फलाफल, उसका जो भी परमेश्वर उसके लिए करेगा हम उसको देख पाएंगे, इसीलिए उसको कहा जाता है आमेन। अभी इफ ही चेंज, अगर परिवर्तन होता है तो उसका हम लोग आमेन नहीं कह सकता है। इसीलिए ही इज फर्म एंड फेथफुल, लेट इट बी एंड इट इज। गॉड who never changes. Malachi chapter 3 verse 6, Hebrew chapter 13 verse 8 and James chapter 1 verse 17. He never changes. Unchanging Jesus. He is God that he never changes. He keeps his promises. वो अपना प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। परमेश्वर अपना प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। Romans chapter 10 verse 9 and Romans chapter 10 verse 13, अगर आप लोग एक बार उस वचन को देखेंगे, Romans chapter 10 verse 9 and Romans chapter 10 verse 13, that if you confess your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Romans chapter 10 verse 9, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. God is so faithful. परमेश्वर इतना विश्वासी है कि अगर आप यीशु को अपना त्राणकर्ता स्वीकार करते हो, आप मान लेते हो कि प्रभु यीशु में से मेरा त्राणकर्ता है, उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा जो जीवन देने वाला यीशु है और वो मेरा प्रभु है, मान लेते हो, तो वो क्या करेगा? लिखा है, he is so faithful that God will raise him from the dead will be saved. आप अगर ये विश्वास करते हो कि वो मरे हुए से गॉड ने परमेश्वर ने यीशु मसीह को उठाया, अगर आप विश्वास करते हो तो आप भी क्या होगे? आप भी विश्वास रक्षा पाओगे, you will be saved. ये परमेश्वर वचन को बोला है स्पष्ट रूप से। वर्स 13 को एक बार देखिए, For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For everyone, सभी व्यक्ति जो प्रभु का नाम लेते हैं वो बचेगा, वो उसका परित्राण होगा, वो उद्धार पाएगा।
आप जब प्रभु का नाम को लेते हैं, जब आप प्रभु का नाम को आप लेते हैं, तब आपको मन में ये आपको ठान लेना चाहिए कि मैं यीशु का नाम ले रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर विश्वासी है और मुझे उठाएगा, क्योंकि वो अपना प्रॉमिस को पूरा करने वाला प्रभु है। He will keep and take you to the heaven when the life is over। जब आपका ये जीवन खत्म हो जाएगा, आप इस दुनिया में आपका लास्ट अंतिम समय होगा, आप जब चले जाओगे, आपका लाइफ को वो स्वर्ग में, हेवन में उसको प्रिजर्व करेगा, अपना साथ रहने देगा। जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 37 to 40 and 44। आप जब इस दुनिया को छोड़ देंगे, तब आपको परमेश्वर अपना साथ, अपना जो स्वर्ग में आपको रखेगा, प्रिजर्व करेगा। ही इज फेथफुल, उसने कहा है। जेरेमिया चैप्टर 33 वर्स 3 एंड मैथ्यू 7 वर्स 7 to 11 लिखा है कि वो इतना विश्वासी है, जब आप उसको पुकारोगे तो वो सुनेगा। मैं ये वचन के इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ज़्यादा इसमें जोर दे रहा हूँ कि इस समय हम लोग को जरूरत है ऐसा एक परमेश्वर का, जो आप जिसको हम पुकारते हैं तो सुनना चाहिए, जिसको हम आवाज़ देते हैं वो आवाज़ का हम लोग को भी उसने आवाज़ देना चाहिए, हम लोग को भी वो बोलना चाहिए, हम लोग को भी वो रिप्लाई देना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है ही विल हियर यू व्हेन यू कॉल, जब आप उसको पुकारोगे तो अब सुनेगा। जेरेमिया 33 वर्स 3, ये हम लोग का सब विश्वासी मसीही लोग जानने वाला वचन है। ही विल आंसर यू, আমার ঈশ্বরে আমাক উত্তর দিয়ে। আর মেথিউ 7:7 কৈছে খোজাতে হে তোমালোকক দিয়া হবা, বিচাৰাতে হে তুমি পাবা, আৰু টুকুৰাতে হে তোমালোকলৈ দুৱাৰ মুকলি কৰা হ'ব। তাৰ মানে ইয়াৰ অৰ্থটো এইটো হৈছে যে আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিম, আমি যেতিয়া বিচাৰিম, আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপি আহিম, ঈশ্বৰে শুনিব আৰু তেওঁ উত্তৰ দিব, এইটো তেওঁ কৈছে। আৰু এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, কিয়নো তেওঁ প্ৰমিছ কৰিছে। Every word written in the Bible is a promise of God. The whole Bible is full of promises। जितना भी वचन इसमें लिखा गया है और परमेश्वर का जो दिल से निकला है, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा कहे गए हैं, परमेश्वर खुद बोले हैं। इस वचन को जब आप इसको आप जान लेते हो, ये आपके लिए एक प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, ये आपके लिए परमेश्वर का दिया हुआ एक वाचा है, जिसको बोला जाता है कॉवेनेंट। कॉवेनेंट का मतलब हो गया एग्रीमेंट। द बाइबल इज ए पार्ट ऑफ 2 covenants, one old and the second is new, that is called testament, agreement। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट दोनों बोला जाता है। जो परमेश्वर ने आपका साथ जो वाचा बांधा है, परमेश्वर ने आपका साथ जो कॉवेनेंट रखा है, परमेश्वर ने आपका साथ जो एग्रीमेंट किया है, वो है बाइबल। और इस एग्रीमेंट में आपको कुछ नहीं लिखा है, कुछ ऐसा अलग सा कुछ परमेश्वर ने नहीं बोला है। जो आपका डे टू डे लाइफ में जो चाहिए, जीवन बिताने के लिए जो आपको चाहिए, उसमें वो लिखा है। इस दुनिया में चलने के लिए जो कुछ आपको चाहिए वो इस बाइबल में लिखा है। आपको आत्मिक लाइफ कैसे बिताना है उसके लिए बारे में बाइबल में लिखा है। और आपको मृत्यु का बाद आपका क्या लाइफ होगा, मृत्यु का बाद आप कैसे चलोगे, इसका बारे में लिखा है। सो व्हेन यू विल कॉल ऑन हिम, ही विल हियर। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड एंड ही इज द कीपर ऑफ हिज प्रॉमिस। अब एक बार पुकार के देखो, ओ टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। आप टेस्ट करके देखो, एक बार पुकार के तो देखो, आप उसको एक बार आवाज़ दे के देखो, वो आपका आवाज़ को सुनेगा और आपको रिप्लाई देगा, वो आपका प्रार्थना को उत्तर देगा। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 25 to 34, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 19 लिखा है, ही विल मीट योर नीड्स, वर्ल्डली नीड्स। स्पिरिचुअल नीड्स इज द सेपरेट थिंग, बट वर्ल्डली नीड्स, दुनिया का। मैथ्यू चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगे, लास्ट तरफ आप पढ़ेंगे, लिखा है क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हम लोग क्या चलेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो। अगर परमेश्वर इस दुनिया में जो सुंदर सुंदर फूलों को, इतना कलरफुल फूलों को भी दुनिया में रखा है, तो आप उसमें कितना, उससे भी कितना कीमत आपका है। अगर आपको परमेश्वर ने दुनिया में भेजा, आप कितना कीमती है। कल परसों मैंने एक छोटा सा निबंध आया था, एक छोटा सा मैंने वो पढ़ा था स्टोरी। एक अच्छा स्वस्थ आदमी, এটা ভাল শৰীৰৰ মানুহ, যাৰ কোনো বেমাৰ নাই, তেওঁ গোটেই শৰীৰটো মূৰৰ চুলিৰ পৰা ভৰিলৈকে তেওঁৰ সেই মানুহটোৰ ভেলু, প্ৰেজেণ্ট ভেলু 28 crore।
এজন মানুহৰ প্ৰেজেণ্ট ভেলু ইণ্ডিয়ান ভেলু হিচাপত উলিয়াইছে 28 কোটি টকা এজন মানুহ ভাল স্বাস্থ্যৱান মানুহৰ শৰীৰটোৰ ভেলুটো ওলাইছে তাৰ মানে তাৰ চুলিৰ দাম তাৰ ব্লাডৰ দাম তাৰ কিডনিৰ দাম তাৰ ছালৰ দাম তাৰ হাড়ৰ দাম তাৰ যিমানবিলাক আছে তেজৰ দাম সববিলাক হিচাপ কৰি পিনে যেতিয়া গৈছে মানুহটো 28 কোটি টকাৰ মানুহ এজন মানুহ নিজৰ শৰীৰটো 28 crore কিমান আচৰিত কথা যে এজন মানুহ নিজৰ শৰীৰটোৰ কিমান ভেলু আছে এটো আমি পৃথিৱীৰ ফালৰ পৰা হিচাপ কৰিলে গম পাওঁ কিন্তু ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ঈশ্বৰে কৈছে মই তোমাক সৃষ্টি কৰিলো হেকানে বুঢ়া বয়সলৈকে মৃত্যুলৈকে মই তোমাক চলাই লৈ যাম এটো ঈশ্বৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰমিস যে মৃত্যুলৈকে চুলি গ্ৰে হোৱালৈকে মই তোমাক চলাই লৈ যাম প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰে খালি জন্ম দি পিনে এৰি দিলে এনেকুৱা নহয় ঈশ্বৰে খালি আপোনাক পৃথিৱীত পঠাই দিলে এনেকুৱা নহয় মৃত্যুলৈকে মই তোমাক চাম বুলি ঈশ্বৰে কৈছে তাৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ প্ৰতিজ্ঞাত সদায় তেওঁ ৰেডি আছে he is ever ready to help us he is always there to help us and lead us but it is we are drifting away we are going far away from his promises আমি ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছো তেওঁ প্ৰতিজ্ঞাৰ পৰা আঁতৰি গৈছো নিজেই আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো নিজেই আমি আৰম্ভ কৰো সেই কাৰণে ঈশ্বৰে আজি আমাক সহায় কৰিব নোৱাৰে Philippians chapter 4 verse 6-7 ত লিখা আছে he will give you his peace and in every circumstance of your life আপোনাৰ জীৱনত যিকোনো পৰিস্থিতিত তেওঁ নিজৰ শান্তিটো সদায় দিম বুলি কৈছে this is the promise of God this is the faithful promise of God ঈশ্বৰৰ এটো আটাইতকৈ বিশ্বাসৰ প্ৰতিজ্ঞা হয় বিশ্বাসৰ প্ৰতিজ্ঞা যেটো আমি আমাৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ কাৰণে ঈশ্বৰে দিছে এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ খালি তেওঁ কথাত নহয় not only his in words but God is faithful in his action and performance also ঈশ্বৰ খালি কথাতে তেওঁ মানে বহুত কথা কৈ দিলে প্ৰমিস কৰিলে তাতে ফেথফুল বিশ্বাসী নহয় তেওঁ কামতো বিশ্বাসী friends may fall away but God never fail হেকানে আমি গীত কিতাপৰ এটা গান এটো গাও নহয় যে 315 নম্বৰত আমি গীতটো গাও তোমাৰ বন্ধুৱে এৰিলে প্ৰাৰ্থনাত তুমি তেওঁলৈ আহা আমি গীতমালা এটো আমি এটো জানা দুৰ্বল পাপত ভাৰিনে কে কাই গৈছানে ভাৰ ধন্য যিছু বাটচায়া আছে তেওঁলৈ নিয়া প্ৰাৰ্থনা তোমাৰ বন্ধুৱে এৰিলে প্ৰাৰ্থনা তেওঁলৈ আহা বাহুৰে তোমাক ঢাকিব তুমি তেওঁত বিশ্ৰাম পাবা जब डेविड और अहीतोपेल डेविड का बेटा अबशालोम जब डेविड का अगेंस्ट में खड़ा हो गया डेविड का जो व्यक्ति था अपना ही एकदम बिल्कुल विश्वासी जो उसको हमेशा काउंसलिंग देने वाला उसको लड़ाई में कब जाना चाहिए लड़ाई करना कि नहीं चाहिए ऐसा काउंसलिंग देने वाला एडवाइजर अहीतोपेल वो डेविड को छोड़ दिया डेविड को छोड़ दिया और वो डेविड का बेटा अबशालोम का पास चला गया इवन बाइबल में आप उसमें पढ़ेंगे आप 2 Samuel चैप्टर 15 चैप्टर 16 चैप्टर 17 पूरा पढ़ेंगे उसमें लिखा है अहीतोपेल जो एक समय जो दाऊद का बिल्कुल विश्वासी था दाऊद का भी बिल्कुल करीब उसका पास में रहने वाला व्यक्ति था काउंसलिंग देने वाला एडवाइजर था उसने ऐसा बोस्टिंग किया कि मैं अभी जाके दाऊद के साथ लड़ाई करूंगा उसका जितना भी साथ में रहने वाला जितना भी सैन्य है उसको भगा दूंगा मार दूंगा और लास्ट में दाऊद को मैं पकड़ के लाऊंगा ऐसा भी उसने बोस्टिंग किया दाऊद को छोड़ दिया दाऊदक एरि दिले किंतु ईश्वर दाऊदक केতিয়াও एरा नासिले
দাউদে ঈশ্বৰক এৰা নাছিলে আৰু ঈশ্বৰেও দাউদক এৰা নাছিলে ঈশ্বৰে দাউদৰ লগত থকা কাৰণে দাউদে নিজৰ সিংহাসন হেৰুৱালে নিজৰ পুতেকে যেতিয়া সিংহাসন অধিকাৰ কৰি ল'লে কিন্তু দাউদ পলাই গ'ল হ'লেও ঈশ্বৰে আকৌ দাউদক আনি ৰিএষ্টাব্লিছ কৰিলে আকৌ আনি দাউদক নিজৰ সিংহাসনত বহুৱালে This is the faithful God. He is not only faithful on his promises but in his performance also he is faithful. তেওঁ দেখুৱায় যে মই তোমাৰ লগত আছো তোমাৰ বন্ধুৱে তোমাক এৰিলেও প্ৰাৰ্থনাত তেওঁৰ ওচৰত আহা বন্ধু আজি আছে কালি এৰি আপোনাক গুচি যাব পাৰে আপোনাৰ ভাই আজি আপোনাৰ লগত আছে আপোনাক কালি এৰি গুচি যাব পাৰে আপোনাৰ মা দেউতা আপোনাৰ লগত আজি আছে কালি তেওঁ পৃথিৱীত নাথাকিব পাৰে কিন্তু গড ঈশ্বৰে কৈছে মই সদায় থকা ঈশ্বৰ আৰু মই তোমাৰ লগত থাকিম এইটো প্ৰমিস সদায় 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 যিমান দিন ঈশ্বৰ থাকিব ঈশ্বৰ কেতিয়াও শেষ নহয় সিমান দিন তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা থাকিব বাইবেলত লিখা আছে আকাশমণ্ডল লুপ্ত হৈ যাব পাৰে পৃথিৱী শেষ হৈ যাব পাৰে কিন্তু মোৰ বাক্য কেতিয়াও লুপ্ত নহয় প্ৰেজ দ্য লৰ্ড যেতিয়া আপুনি এটো যিশু আৰু জিহুদাৰ বিষয়ে আপুনি পঢ়িব জুদাস ইস্কাৰিয়ট এণ্ড জিজাছ 12 জনৰ মাজত এজন আছিল জিহুদা ইস্কাৰিয়ট জুদাস ইস্কাৰিয়টে কি কৰিলে যিশুক ঠগিলে খুধাই দিলে ধোকা দিলে আৰু যাৰ কাৰণে যিশু এৰেষ্ট হ'ব লগা হ'ল ইভেন তেওঁৰ কাৰণে মৰিবলৈ হাজু হৈ থকা পিটাৰ যিজনে কৈছিলে মই তোমাৰ কাৰণে মৰিলেও মৰিম তেওঁ পলাই গ'ল বাইবেলত লিখা আছে এজন এনেকুৱা ডিসাইপল আছিল কাপোৰ লৈ আছিল যেতিয়া তাক ধৰিলে ডিসাইপল আৰ্মি বিলাকে তেওঁ কাপোৰ এৰি উলংগ হৈ পলাই গ'ল সবে এৰি দিলে কিন্তু ঈশ্বৰে কেতিয়াও যিশুক নেৰিলে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰে কেতিয়াও যিশুক নেৰিলে আৰু সেই কাৰণে যিশুৰ ক্ৰুচত মৃত্যু হ'ল কবৰত 3 দিন থাকিলে কিন্তু তৃতীয় দিনাখন সেই যিশুক ঈশ্বৰে তুলি লৈ গ'ল বিকজ गॉड इज फेथफुल क्योंकि परमेश्वर विश्वासयोग्य है इसलिए यीशु को उसने जो कब्र में था 3 दिन लेकिन चौथा दिन होने नहीं दिया 3 दिन का बाद परमेश्वर ने उसको उठा ले गया प्रभु यीशु का विश्वास था इसलिए उसने बोला था ये मंदिर को तोड़ दो मैं 3 दिन में उसको खड़ा करूंगा ये किसका वर्ड था यीशु का वर्ड था किसलिए इसने बोला था कि उसने परमेश्वर को जो पिता का ऊपर उसका विश्वास था कि मेरा पिता मुझे उठाएगा विश्वास था और वो विश्वास को कब हम लोग देखा फुलफिल हुआ जब यीशु को मार के उसको क्रूसिफाई करके जब गाड़ दिया गया और 3 दिन का बाद उसको 3 दिन में उसको उठा के परमेश्वर ले गया आज सबसे ऊंचा स्थान फिलिपियन चैप्टर 2 में लिखा है सबसे ऊंचा स्थान में उसको रखा गया है और वो परमेश्वर का दाहिने ओर बैठ के हमेशा आपके लिए मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है आपका फैमिली आपको छोड़ सकता है लेकिन परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा योर फैमिली विल फेल बट गॉड विल नेवर फेल आप एक अच्छा एक ऐसा एक आपका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ जॉन चैप्टर 9 को पढ़िए जॉन चैप्टर 9 आप पूरा का पढ़ने से पता चलेगा जॉन में लिखा है एक जन्म से नहीं दिखने वाला लड़का का बारे में लिखा है केতিয়াও जन्মৰ পৰা দেখি নোপায় এজন লৰাৰ বিষয়ে তাতে লিখা আছে আৰু সেই লৰাজনক যেতিয়া যিশু আৰু তাৰ শিষ্যবিলাকে লগ পালে তেতিয়া সেই তেওঁলোকে সুধিলে প্ৰভু এই লৰাজনে মাক বাপেকে পাপ কৰিলে নে এও পাপ কৰিলে যে জনম তেওঁৰ আজি জন্মৰ পৰা অন্ধ তেতিয়া যিশুৱে ক'লে এও মাক বাপেকেও পাপ কৰা নাই আৰু এও পাপ কৰা নাই ঈশ্বৰৰ আচৰিত কামটো প্ৰকাশ হ'ব কাৰণে তেওঁক আজি এদৰে উঠাইছে আৰু যিশুৱে তেওঁক সুস্থ কৰিলে যিশুৱে যেতিয়া সুস্থ কৰিলে লৰাজনে কেতিয়াও যিশুক দেখাও নাই কেলে অন্ধ আৰু যিশুৰ বিষয়ে শুনাও নাই কিন্তু যিশুৱে তেওঁক সুস্থ কৰিলে এতিয়া তেওঁ দেখিবলৈ পালে চকু দি তেওঁ বিচাৰি ফুৰিছে কোনে মোক সুস্থ কৰিলে তেওঁৰ বাহিৰে অন্ধজনৰ বাহিৰে বাকি সবেই যিশুক দেখিলে যে এইজনে সুস্থ কৰিলে কোনেও উইটনেছ নিদিলে কোনেও নকলে যে যিশুৱে তেওঁক সুস্থ কৰিলে আনকি যেতিয়া কি কয় হেনাপতি কি কয় এইটো যিমান এইটো পুৰোহিতসকল আহি পিনে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে মাক দেউতাকেও নকলে যে যিশুৱে মোৰ ল'ৰাটো সুস্থ কৰিলে ল'ৰাটোৰ হৈ পিনে মাক দেউতাকো থিয় নহ'ল মাক দেউতাকে এৰি দিলে সি জন্মৰ পৰা অন্ধ তাক আমি জানো সি দেখা পোৱা নাছিলে এইটো আমি জানো কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে এইটো আমি বিশ্বাস কৰিছো আৰু তাক সোধা হি নিজে উত্তৰ দিব কিন্তু মাক বাপেকে দেখিছিলে যে যিশুৱে তেওঁলোকৰ অন্ধ ল'ৰাটোক চাবলৈ দিলে কিন্তু ল'ৰাজনৰ হৈ পিনে ল'ৰাজনৰ লগত যিশুৰ হৈ পিনে থিয় নিদিলে your family
आपका जो परिवार है, एक दिन आपको भी यीशु के लिए या कुछ चीज़ के लिए आपका साथ खड़ा नहीं होगा। जब आप प्रार्थना गिरजा करने लगेंगे, जब आप ईश्वर का विश्वास करने लगेंगे, आपका फैमिली आपको छोड़ देगा, आपका फैमिली आपका विरोध में खड़ा हो जाएगा। आपका फैमिली का तौर से ऐसे आएगा, ये मेरे लिए मर चुका है, ये मेरा परिवार का नाम इज्जत सब कुछ बर्बाद कर दिया, ऐसे भी आपको बोलेगा और आपको त्याग देगा आपका परिवार। ऐसा भी होता है विश्वासी लोग के लिए। मेरा लाइफ में भी हुआ है। मेरा परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरा परिवार ने मुझे मरा हो बोल के मुझे छोड़ के लोग छोड़ दिया। नहीं है बच्चा, मेरा अपना जितना भी छोटा जो भाई जो लोग था वो लोग भी बोला मेरा तो ये मर चुका है। लेकिन यीशु कभी आपको नहीं छोड़ता है, वो फेथफुल है, विश्वासी है। आपका परिवार आपको चाहे छोड़ दे, आपका समाज आपको चाहे छोड़ दे, आपका फ्रेंड सर्कल आपको छोड़ दे, लेकिन गॉड इज फेथफुल, ही विल नेवर लीव यू, ही विल नेवर लीव यू। आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपका फंड, आपका पैसा जितना भी है आज, या खाने के लिए बहुत सा आपका भर के रखा है गोदाम में, वो भी एक दिन ख़त्म हो सकता है। लेकिन गॉड इज़ फेथफुल, वो आपको चढ़ा के लेके जाएगा। वो विश्वासी है, वो आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा। हम लोग का जो किचन है, हम लोग किचन पहले से भी हम लोग देखा है परमेश्वर का आशीष से कि कुछ चीज़ कम होते आते हैं खाने का सामान, लेकिन वो ख़त्म होने का पहले ही, बिल्कुल ख़त्म होने का पहले ही परमेश्वर फिर से आके उसको भरने देता है। किसी के द्वारा कैसे हो, परमेश्वर उसको लाके भरता है। अब देखिए, जो विधवा था जरीफा टाउन में, विधवा का एक ही बेटा था और वो लोग अकाल का समय में मरने के लिए उन लोग का सिर्फ एक ही बार खाना था, उसका बाद और खा के मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने अपना दास को भेज दिया, जाओ। इतना आदमी था उस जगह में, लेकिन उस बूढ़ी का घर में जो विश्वासी था उसका घर में अपना दास को भेज दिया, एलाइजा को। और उस घर में जाके जो उसने बोला मेरा भूख लगा है, मुझे कुछ खाने दो, तो बूढ़ी ने बोला मेरा पास ज़्यादा तो है नहीं, जो थोड़ा सा जो आटा है उसमें से मैं थोड़ा रोटी बनाऊंगा, दो, एक मेरा बेटा, एक मैं खा के, काल से मेरा हम लोग खाने का कुछ नहीं है, हम लोग बिना खाए हम मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का दास द मैन ऑफ गॉड ने बोला कि नहीं, उसमें से छोटा सा एक टुकड़ा मुझे दो खाने के लिए। जब उसने उसको खाने के लिए दिया, उसने प्रार्थना किया, उसने आशीष आने दिया, और जिस जगह में जो आटा था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। बाइबल कहती है जितना दिन वो अकाल था वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि गॉड इज फेथफुल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो है विश्वासी है। बिलीव इन द लॉर्ड, ही इज द ट्रू एंड अनचेंजिंग एंड लिविंग गॉड वी हैव। एक ऐसा परमेश्वर है जो विश्वासी है, जो जिंदा है, और जिसको आप हमेशा आप पुकार सकते हो, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब 5000 आदमी बैठा हुआ था, यीशु का वचन सुनते सुनते भूख लग गया सबका। यीशु को पता चला भूख लगा है, अभी इन लोगों को खाने के लिए चाहिए, तो उसने बोला क्या है खाने के लिए? कुछ नहीं है। सिर्फ क्या मिला? 5 रोटी 2 मछली एक छोटा बच्चा का हाथ में मिला। यीशु ने वो 5 रोटी 2 मछली को लेके परमेश्वर के आगे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना किया, और उसी 5 रोटी और 2 मछली से 5000 आदमी को खिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज फेथफुल, विश्वासी है। इसीलिए आज आपका लाइफ में भी प्रभु ऐसा कर सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है? आपका विश्वास उस परमेश्वर का ऊपर रखना है। आपका जो फेथ है उस परमेश्वर का ऊपर रखना है, और बाकी काम वो खुद कर लेगा। सिर्फ आपका दिल में, आपका हृदय में वो क्या जानना चाहता है, वो मुझे कितना विश्वास करता है, वो कितना मुझे विश्वास करता है, वो कितना मेरे लिए कितना सहन कर सकता है, मेरा नाम के लिए वो कितना कर सकता है। परमेश्वर वही देखता है, क्योंकि वो आपको, बाइबल कहती है दुनिया में जो भी टेम्पटेशन है, जितना भी तराना है, उससे ज़्यादा टेम्पटेशन, प्रेशर आपका ऊपर आने नहीं देगा। मेल्टिंग पॉइंट बोलता है ना, और एक बॉइलिंग पॉइंट बोलता है। आप लोग जब पानी को गर्म करते हैं, ठंडा पानी को जब हम लोग गर्म करता है, जब गर्म होते एक समय आता है, वो क्या होता है, वो बॉइलिंग का जो उसका क्या बोले कहे, तो पानी तो उतलिब धरे, गरम हो पानी तो उतलिब पारे, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट।
আৰু এটা আছে ফ্ৰিজিং পইণ্ট, বা এটা হৈছে একেবাৰে এইটো যিটো বস্তুত পানীটো বৰফ হৈ যায়। পানী আনি যেতিয়া আমি বৰফৰ মেচিনত ৰাখি দিওঁ, লগে লগে বৰফ হৈ নাযায়, সেই পানীটোৱে ঠাণ্ডা গ্ৰহণ কৰি 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 তাৰপিছত শেষত গৈ সেই পানীটো বৰফ হয়। ঠিক তেনেকৈ ঈশ্বৰেও টেম্পটেশ্যন আনিবলৈ দিয়া, ঈশ্বৰেও পৰীক্ষা কৰা, ঈশ্বৰেও দৃষ্টি দিয়া এটা পইণ্ট আছে। তাতকৈ বেছি হ'বলৈ নিদিব, তাতকৈ কমো তেওঁ হ'বলৈ নিদিব। আপোনাৰ জীৱনত যিমানখিনি আপুনি সহ্য কৰিব পাৰে সিমানখিনি পৰীক্ষা তেওঁ আহিব দিব। যেতিয়া আপুনি এইটো পৰীক্ষাত পাছ হ'ব, তেতিয়া ঈশ্বৰে আপোনাক দেখিব, হি ইজ এ ফেইথফুল ছাৰ্ভেণ্ট, হি এজন বিশ্বাসী মানুহ। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে আপোনাৰ জীৱনত আচৰিত কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। ঈশ্বৰে আপোনাক আচৰিত কাম কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিব। পিতৰে যেতিয়া 3 बार अस्वीकार কৰিলে, পিতাৰ जब प्रभु यीशु मसीह को 3 बार बोला मैं नहीं जानता हूँ से मैं नहीं जानता हूँ, मैं जे नहीं जानता हूँ, यीशु ने लेकिन उस पितर को ऊपर बहुत ही विश्वास था यीशु का, क्योंकि इस पितर को बोला था योर नेम विल बी कॉल्ड शिफा, मीन्स ए स्टोन, तुम्हारा नाम को शिफा बोला जाएगा। অসমীয়া বাইবেলত কৈফা লিখা আছে, আচলতে শিফা। অসমীয়া বাইবেলত ভাঙনি কৰোঁতে অলপ বস্তুটো সলনি হৈ গৈছে। শিফা মানে তেতিয়া দিনত শিফা শব্দ, তেতিয়া সেইটো শব্দটো অৰ্থ হৈছে শিফা মানে হিল। আৰু এই হিলৰ ওপৰত মই মোৰ মণ্ডলী স্থাপন কৰিম, আৰু সেই বুলি কৈ তেওঁক স্বৰ্গৰ চাবি দিয়া গৈছিলে বুলি কৈছে। স্বৰ্গৰ চাবি যে তুমি বন্ধ কৰিলে এইটো বন্ধ হ'ব, মুকলি কৰিলে মুকলি হ'ব। ঈশ্বৰে পিতৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিলে, কিন্তু পিতৰে নিজৰ বিশ্বাসটো হেৰুৱাই পেলালে। যেতিয়া যীশুক স্বীকাৰ কৰিলে মই তেওঁক চিনি নাপাওঁ, তেতিয়া তেওঁৰ বিশ্বাসটো হেৰুৱাই পেলালে। আৰু সেই বিশ্বাসটো ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে যীশু যেতিয়া 3 দিনৰ পিছত জি উঠিলে, তেতিয়া তেওঁ আহি এবাৰ পিতৰক দেখা দিলে, পিতাৰ তুমি মোক ভাল পোৱা নে, মৰম কৰা নে? হয় প্ৰভু, মইতো আপোনাক ভাল পাওঁ। আকৌ অলপ দেৰি পিছত সুধিলে, পিতাৰ তুমি মোক ভাল পোৱা নে? হয় প্ৰভু, আপুনি জানে মই আপোনাক ভাল পাওঁ। থাৰ্ড টাইম সুধিলে, পিতাৰ তুমি মোক ভাল পোৱা নে? পিতৰে বিৰক্তি পালে, আমনি পালে, প্ৰভু আপুনি জানে যে মই আপোনাক ভাল পাওঁ। কনফেছন কৰালে, পিতৰৰ মুখৰ পৰা বিশ্বাসটো উলিয়ালে। 3 বাৰ তেওঁক সুধিলে, কিয়নো 3 বাৰ তেওঁ মিছা কথা কৈছিলে। 3 বাৰ তেওঁ তাক সুধিলে যে পিতৰ তুমি মোক ভাল পোৱা নে? পিতৰ তুমি মোক ভাল পোৱা নে? পিতৰ তুমি মোক ভাল পোৱা নে? যেতিয়া পিতৰে স্বীকাৰ কৰিলে, হয় প্ৰভু মই ভাল পাওঁ, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে, দায়িত্ব দিলে, মোৰ মেৰবিলাকক চৰোৱা, মোৰ মেৰবিলাকক চৰোৱা। পিতৰে তেতিয়া ঈশ্বৰে প্ৰভুৱে তেতিয়া তেওঁক দায়িত্ব দিলে। আজি এতিয়াই আপুনি প্ৰভুক বিশ্বাস কৰি এতিয়াই আপুনি মিৰাকল আশা নকৰিব, এতিয়াই মোৰ একদম মই আচৰিত কাম কৰিম আশা নকৰিব, এতিয়াই মোৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব এনেকুৱা আশা নকৰিব। আপুনি যেতিয়া যীশুক জানিছে, আপুনি যীশুৰ লগত লাগি থাকক। এবাইড ইন হিম এণ্ড হি উইল এবাইড ইন ইউ, বাইবেলত কৈছে তেওঁৰ লগত তুমি লাগি থাকা, তাতে তেওঁ তোমাৰ লগত লাগি থাকিব। জেমছ চেপ্টাৰ 4 ভাৰ্ছ 8ত কৈছে ড্ৰ নিয়াৰ টু গড এণ্ড হি উইল ড্ৰ নিয়াৰ টু ইউ। প্ৰথমতে আপুনি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ চাপি আহে, তেতিয়া আপোনাৰ বিশ্বাস, আপোনাৰ ডিভোশ্যন, আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনা সকলো দেখি ঈশ্বৰো আপোনাৰ ওচৰলৈ চাপি আহিব। কিয়নো আপোনাৰ বিশ্বাসটো কিমান আছে সেইটো তেওঁ যেতিয়ালৈকে নেদেখিব, তেতিয়ালৈকে তেওঁ আপোনাক এপইণ্ট নকৰিব, তেতিয়ালৈকে আপোনাক তেওঁ নিদিব, তেতিয়ালৈকে আপোনাক তেওঁ ব্যৱহাৰ নকৰিব। কিয়নো আপোনাৰ বিশ্বাসটো আপুনি এইটো বালিৰ ওপৰত কৰিছে নে আপোনাৰ বিশ্বাসটো আপুনি শিলৰ ওপৰত ৰাখিছে? कहाँ है आपका विश्वास? इसीलिए गॉड इज फेथफुल, गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर जो है वो विश्वासी है। कभी कभी हम लोग का विश्वास, अच्छा विश्वासी लोग का भी विश्वास क्या होता है, कमज़ोर पड़ता है। हम लोग का विश्वास कमज़ोर पड़ता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का विश्वास कमज़ोर नहीं पड़ता है। আমি ঈশ্বৰৰ ওপৰত থকা বিশ্বাসটো আমাৰ কেতিয়াবা কি হয়, কমজোৰি হৈ যায়, দুৰ্বল হৈ যায়। কিন্তু ঈশ্বৰে আমাৰ ওপৰত যিটো বিশ্বাস ৰাখিছে সেইটো কেতিয়াও কি হয়, আমাৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাসটো তেওঁ দুৰ্বল নহয়। 2 টিমথী চেপ্টাৰ 2 এণ্ড ভাৰ্ছ 13 যদি আমি এবাৰ চাওঁ, 2 টিমথী চেপ্টাৰ 2 ভাৰ্ছ 13, if we are faithless, he will remain faithful, for he cannot disown himself. जब अगर हम लोग का विश्वास कमज़ोर होता है, गड़बड़ होता है, विश्वास कमती होता है, फिर भी परमेश्वर अपना विश्वास नहीं खोता है।
ये उसका एक कैरेक्टर है, वो इसका एक गुण है कि वो इज फेथफुल। वो अपना विश्वास अपना विश्वास खो नहीं सकता। जैसे नमक चाहे इतना बड़ा हो या इतना छोटा हो, वो नमक ही रहता है। नमक जो होता है, आप बड़ा नमक कभी चख के देखो और नमकीन लगेगा, छोटा सा एक क्रिस्टल, एक छोटा सा आप टुकड़ा ला के भी टेस्ट करके देखो, नमकीन लगेगा। क्योंकि नमक अपना नमकीन गुण जो वो खो नहीं सकता। चाहे आप उसमें चीनी डालो, चाहे जो भी डालो, नमकीन ही रहेगा। परमेश्वर ऐसा है, वो विश्वासी है, फेथफुल है, वो अपना विश्वास खो नहीं सकता। ही इज फेथफुल गॉड। आप और मैं अपना विश्वास को खो सकता हूं, लेकिन गॉड नेवर लूजेस हिज फेथफुलनेस। इसलिए हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 में बोला है, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर फॉरसेक यू। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5 में लिखा है जे नेवर विल आई लीव यू, नेवर विल आई फॉरसेक यू। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। नो नेवर alone, no, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. No, never alone, no, never alone. He promised never to leave me, never to leave me alone. नहीं कभी नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हो, छोड़ूंगा कभी नहीं। God will never leave you. He is so faithful. It is one of his character that he is so faithful. He will never leave you. He will never forsake you. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आज का सर्विस को, आज का प्रीचिंग को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। एक आर्मी रिटायर होके अपना बैग बुकते हुए, एक आर्मी ऑफिसर अपना बैग बुकते हुए रास्ता से आ रहा था। उसको जाना है, आज उसका रिटायरमेंट मिल गया, वो अपना घर जाना चाहते हैं। तो रास्ता में हर एक गाड़ी को रोकते गया, कोई भी गाड़ी नहीं रुका। अचानक एक दूर से उसको गाड़ी दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर अच्छा गाड़ी उसको दिखाई दिया, बहुत दामी गाड़ी, करोड़ रुपये का गाड़ी। तो उसने हाथ दिया, वो सोचा रुकेगा भी नहीं, इसे हाथ दिया। तो ड्राइवर अचानक आके उसका पास रोका। आप लिफ्ट चाहते हैं? हाँ मैं लिफ्ट चाहता हूँ, मुझे घर जाना है। तो उसने अपना लगेज पीछे डाल के और दोनों व्यक्ति आगे बैठ के, वो चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी चला के, दोनों बातचीत करते करते जा रहा था। और जब उस आर्मी ऑफिसर अपना घर पहुंचने के लिए जब टाइम को देखा और आधा घंटा का बाद मुझे अपना घर मिलेगा, तो उसने सोचा मैं अपना जो यीशु का बारे में इस व्यक्ति को थोड़ा बताऊं, यीशु का बारे में मैं इस व्यक्ति को बताऊं। तो आर्मी ने उस ड्राइवर को बोला, क्या आप यीशु का बारे में जानते हैं? आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? उसने बोला हाँ मैं यीशु का बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। उसने यीशु का प्यार का बारे में बहुत सुंदर से उसको बताया, और कैसे पापी को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा देता है, और कैसे पापी को प्रभु ने उद्धार करता है और पापी के लिए अपना लहू बहाया। सब बारे में सुसमाचार उस ड्राइवर करने वाले व्यक्ति को बताया। और व्यक्ति ने उस समय जब यीशु का बारे में सुन रहा था, अचानक वो गाड़ी को एक साइड पर रोक दिया। आर्मी ऑफिसर ने सोचा अभी तो ये यीशु का बारे में इसको मैं बोल दिया, अभी तो ये गाड़ी से मुझे निकाल के भेजेगा, वो निकाल के भगा देगा। लेकिन वो ड्राइवर ने, जो गाड़ी का मालिक था, उसने गाड़ी का हैंडल को, स्टीयरिंग को पकड़ते बहुत रोया। उसने बहुत रोया और बोला आज मैं यीशु को अपना जीवन देता हूँ, मेरा जितना गुनाह मैंने करके आया है सब गुनाह को मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं यीशु को अपना जीवन देता हूँ।
और उसने अपना कार्ड को अपना विजिटिंग कार्ड को आर्मी ऑफिसर को बोला, कभी आप मेरा टाउन में आने से, मेरा ऑफिस है वहाँ, आप आइएगा। आर्मी ऑफिसर उठ के चला गया और वो आदमी चला गया। 5 साल का बाद वो आर्मी ऑफिसर शादी किया, लड़का बच्चा हो गया। 5 साल का बाद उसने वो भी एक बिज़नेस स्टार्ट किया और अपना बिज़नेस का कोई काम के लिए उस टाउन में जा रहा था। उसने सोचा वहाँ तो मैं एक आदमी को मिला था, बड़ा सा जो बिजनेसमैन, मैं उसका मिलूँगा बोल के उसने अपना कार्ड को ढूंढा और कार्ड को लेके जब उस टाउन में पहुँच गया तो उसने उस आदमी का ऑफिस को ढूंढा। ऑफिस में जाके जो ऑफिस में बाहर बैठने वाला रिसेप्शनिस्ट को पूछा, मुझे इस साहब से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट बोला, आप उस साहब से मिल नहीं सकता। ये बोला, या फिर आर्मी ऑफिसर बहुत अचानक हो गया, क्यों नहीं मिल सकता, उसका वाइफ है, आप उसका वाइफ से मिलिए। तब उसने जब ऑफिस का दरवाज़ा खुल के अंदर गया, उसने 50 साल का एक औरत को देखा जो सूखा हुआ था, आँख सूजी, बिल्कुल आँख उसका बहुत धुंधला हुआ, शरीर दुबला हुआ एक औरत को मिला। और औरत ने बोला, क्या आप मेरा हस्बैंड को जानते थे? हाँ, मैं आपका हस्बैंड को जानता था। कैसे आप मेरा हस्बैंड को जानते थे? ओ, उस दिन 7 तारीख था। 7 तारीख ऐसा क्या है? 7 तारीख मैं अपना लास्ट ड्यूटी ख़त्म करके मैं जब रिटायरमेंट होके मैं आ रहा था, रास्ता में आपका हस्बैंड को मिला और मैं उसका गाड़ी में आ रहा था, तो उसने यीशु के बारे में उसको बोला। और उसने यीशु के बारे में बोलने के बाद उसने क्या बोला? बीबी ने पूछा, उस औरत ने पूछा। उसने यीशु के बारे में जब मैंने उसको बोला, उसने गाड़ी साइड में रखते हुए बहुत रोया और रोने के बाद कन्फेस किया, पाप स्वीकार किया और मैं गाड़ी से उतर गया। आज 5 साल का बाद उस व्यक्ति को मिलने के लिए आ रहा हूँ। औरत उसने आंसू बहाते हुए कहा, ओ प्रभु, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपका ऊपर विश्वास नहीं रखा, मैं आपका आगे प्रार्थना करना छोड़ दिया, प्रभु आप मुझे माफ़ करना। तो अब आर्मी ऑफिसर जो अभी बिजनेसमैन बन गया, उसने पूछा, क्या हो गया बहन, किस लिए आप रो रहा है, किस लिए माफ़ी चाह रहा है? उसने बोला, मैं अपना हस्बैंड जो एक पियक्कर था, बहुत ही खराब आदमी था, हमेशा प्रभु के आगे प्रार्थना करता, प्रभु आप मेरा हस्बैंड को रिपेंट होने दे, मेरा हस्बैंड को आपका पास आने दे, उसका मन फिराव करने दे। लेकिन वो 7 तारीख था, वो अपना कोई बिजनेस ट्रिप से आ रहा था, तो अचानक रास्ता में उसका एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में वो देहांत हो गया। लेकिन वो जब मरने का पहले आपसे मिला और आप यीशु के बारे में बताया और वो अपना लाइफ को जो यीशु को दे दिया, ये बात मुझे पता नहीं था। जब आज 5 साल हो गया, जब यीशु ने मेरा प्रार्थना को नहीं सुना, इसलिए मैं प्रार्थना बंद कर दिया। जो यीशु मेरा प्रार्थना ही नहीं सुनता है, मैं उसके आगे प्रार्थना नहीं करूँगा बोल के आज 5 साल हो गया मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं चर्च नहीं जाता, मैं बिल्कुल एक ऐसा कोई बिना प्रार्थना रहित जीवन बिता रही थी। लेकिन आज आपने बताया कि मेरा हस्बैंड तो यीशु का आगे अपना गुनाहों को स्वीकार करते हुए और यीशु को मानते हुए उसने चला गया। मैं इसलिए आज प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। गॉड इज फेथफुल। उस औरत ने कितना साल प्रार्थना किया होगा अपना हस्बैंड के रिपेंट के लिए। वो उसको रिप्लाई 5 साल का बाद लेट से मिला। उसने हस्बैंड को उसका देहांत होने के बाद उसने प्रार्थना को बंद कर दिया, लेकिन गॉड इज फेथफुल। उसने जो आदमी उसका एक्सीडेंट होने का पहले वो यीशु को जानने दिया। और मैं विश्वास करता हूँ जो व्यक्ति यीशु को जानते हैं, जो व्यक्ति यीशु का आगे माफी मांगते हैं, पापों को स्वीकार करते हैं, बाइबल कहती है वो मरने से भी उसका प्राण, उसका जो आत्मा है वो स्वर्ग में एंट्री होके प्रभु का साथ रहेगा, बाइबल कहती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज आप विश्वासी, जो परमेश्वर हमारा है वो विश्वासी है, सिर्फ आपका विश्वास उसका ऊपर आगे रखना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। Shall we stand together and pray? हम सब खड़े होके एक बार मिल के प्रार्थना करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु आप विश्वासी है, मैं अविश्वासी हूँ, मेरा विश्वास बढ़ाइए, इंक्रीज माय फेथ, मेरा विश्वास को बढ़ाइए, आपका ऊपर विश्वास होने दे, क्योंकि मेरा विश्वास कभी डगमगाता है, कभी मेरा विश्वास में कभी मैं ऊपर नीचे होता हूँ, लेकिन प्रभु मैं आपका आगे प्रार्थना करता हूँ, मेरा विश्वास को बढ़ने दे। आइए प्रार्थना करें। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 praise the Lord। पवित्र ईश्वर, प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने सुंदर समय हमें दिया, आपने आशीष किया और आज सुबह से लेकर आज प्रभु जी इस समय तक आपने चला के लेके आया।
आपका सुंदर वचन आप हमें दिया है। आप विश्वास योग्य प्रभु है और आप प्रभु धार्मिक है। आपका आगे प्रभु हम लोग अधार्मिक है, हम लोग अपराधी है, हम लोग आपका नाम लेने का योग्य नहीं है पिता। आपका नाम लेने का योग्य नहीं है प्रभु। इस समय मैं आपका आगे अपना गुनाह को, अपना अपराध को माफी मांगता हूँ पिता। आप मेरा हर एक पाप, हर एक अपराध, हर एक गुनाह को आपका पवित्र लहू के द्वारा धोकर आप मुझे शुद्ध कर दीजिए। जितना भी प्रभु मैंने पाप किया है, जितना भी भाई बहन यहाँ उपस्थित है, जितना भी पाप किया है प्रभु, हर एक का जीवन में आया हुआ पाप अपराध को आपका पवित्र लहू के द्वारा आप उन्हें शुद्ध कर दीजिए। आप उन्हें उद्धार कीजिए ताकि आपका संतान लोग हर एक पाप अपराध और गलती से आज़ाद हो सके। जितना भी भाई बहन फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, आप उन लोग का भी हर एक पाप अपराध को आपका पवित्र लहू के द्वारा आप धो दे। यीशु मसीह का नाम से दुष्ट आत्मा को मैं हुक्म देता हूँ, अभी इसी वक्त निकल जा। जितना भी बाधा देने वाला शैतान, यीशु मसीह का नाम से मैं हुक्म देता हूँ, अभी इसी वक्त छोड़ दे। जितना भी भाई बहन का जीवन में काम करने वाला शैतान, यीशु मसीह का नाम से तू निकल जा। उन लोग का जीवन में बाधा देने वाला शैतान, उन लोग का जीवन में जितना भी तकलीफ देने वाला शैतान, समस्या लाने वाला शैतान, यीशु मसीह का नाम से तू निकल जा। उन लोग का जीवन में काम करने वाला शैतान, यीशु मसीह का नाम से तू निकल जा। जितना भी उनका प्रॉब्लम लाने वाला, विश्वास खत्म करने वाला, धार्मिकमय जीवन बिताने में बाधा देने वाला शैतान, यीशु का नाम से तू निकल जा। हे जितना भी भाई बहन आज हमारे साथ जोड़े हैं, हर एक का जीवन में से तू निकला यीशु मसीह का नाम से। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तू छोड़ दे यीशु मसीह का नाम से, तू निकल जा यीशु मसीह का नाम से, तू दूर हो यीशु का नाम से। हर एक भाई बहन का जीवन में से तकलीफ लाने वाला शैतान, समस्या लाने वाला शैतान, उन लोग का जीवन में विपद लाने वाला शैतान, जितना भी बाधा देने वाला शैतान, यीशु का नाम से तू निकला, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से। हालेलुया। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने आशीष किया, आपने सुंदर समय हमें दिया, आपने अनुग्रह किया। आपका वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे आपका वचन को प्रभु समझने के लिए दिया, आपका वचन को प्रभु जानने के लिए दिया, और आप कितना विश्वासी है, आप विश्वास योग्य है, आप मुझे जानने दिया। प्रभु मैं तो अपराधी हूँ, मैं तो आपका प्रभु आपका नज़र में, आपका दृष्टि में प्रभु मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ, लेकिन प्रभु आप हमें आशीष कीजिए ताकि मैं विश्वासी बन सकूँ। जितना भी भाई बहन यहाँ है प्रभु, जितना भी भाई बहन यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा हमें इस समय देख रहा है, जो रहा है, हर एक का ऊपर प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, विश्वासी बनने दे। आपका विश्वासी, आपका फेथफुल सर्वेंट होने के लिए, आपका विश्वासी होने के लिए प्रभु आप आशीष कीजिए। प्रभु मैं आपके लिए, आपका आगे मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक भाई, हर एक बहन का जीवन में आप काम कीजिए ताकि प्रभु आपका अनुग्रह उनका जीवन में काम करे। उनका बीमार लोग आप ले लीजिए, उनका समस्या को आप ले लीजिए, उनका तकलीफों को आप ले लीजिए, उनका जितना भी घर का परिवार का जो भी प्रभु प्रॉब्लम है आप उन्हें ले लीजिए पिता, और आपका आशीष आने दे। पवित्र आत्मा आप उन लोग का जीवन में काम कीजिए, पवित्र आत्मा इनका लाइफ में काम कीजिए, पवित्र आत्मा उन लोग का हर एक का इंडिविजुअली प्रभु आप उनका जीवन में काम कीजिए। आपका पवित्र आत्मा उन लोग का जीवन में आने दे पिता, आपका पवित्र आत्मा काम करने दे, बीमारों को ले ले और उन लोग को चंगाई दे, उन लोग को आशीष दे, उन लोग को प्रभु जो भी रुपया पैसा का कमी है, जो भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हर एक प्रॉब्लम को आप ले लीजिए, उठा लीजिए पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप विश्वासी हैं, कभी प्रभु उन लोग का खाने पीने का सामान प्रभु उन लोग से प्रभु कम हो सकता है, कभी उन लोग का दोस्त अपना परिवार उसको छोड़ सकता है, उनका जितना भी प्रभु रिश्तेदार है उनको छोड़ सकता है, त्याग सकता है, लेकिन आप उन्हें कभी भी मत छोड़िए, आप उन्हें कभी भी मत त्यागिए। हमेशा उन लोगों का साथ में रहिए प्रभु, हमेशा उन लोग का विश्वास साथ, आपका विश्वासी लोग का साथ आप रहिए, उन लोग का विश्वास को आप बढ़ाइए, उन लोग का विश्वास को बढ़ाइए, उन लोग का फेथ को इंक्रीज कर दीजिए ताकि हमेशा आपका साथ रहे। जितना भी ताड़ना, कठिनाइयाँ, जितना भी समस्या आए प्रभु कभी आपको वो लोग छोड़ के नहीं जाने।
ऐसे प्रभु आप आशीष कीजिए, कभी आपको छोड़ के नहीं जाने के लिए प्रभु आप इसे आशीष करना। प्रभु समस्या से उन लोग को उद्धार कीजिए, बीमार से उनको चंगा करके उसको प्रभु आशीष कीजिए। प्रभु आपका हर एक भाई, आपका हर एक संतान को मैं आपका पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु परिवार को आपका हाथ में सौंपता हूँ। जो वो अभी आपको देख इस वचन को सुन रहा है प्रभु, हर एक का ऊपर आपका आशीष रहने दीजिए। प्रभु आपका अनुग्रह और पवित्र आत्मा से भरिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने आशीष किया सुंदर वचन और सुंदर प्रभु आपका पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।